हाँ Excuse बोलिए। me, sir. Sir, a doubt. Sir, यस हर्ष। what are slime molds? दैट यू विल डिस्कस इन बॉटनी। ओके, तो जब आप पढ़ोगे स्लाइम मोल्ड्स, as now I can tell you they are some type of what, protozoans. Now they are placed in protozoans. Slime mold mane, have you seen this ladua means have you felt bhindi? Yes, sir. So it is slippery or not? So similarly, slime molds are slippery structures, slippery organisms. Okay, so like that. And आप इनके बारे में पढ़ेंगे बॉटनी में। मेरा काम इधर खत्म हो गया। ओके, so more details, Chinmay sir. He is teaching. Chinmay sir is teaching you, ना US is teaching you? Sir Chinmay Chinmay sir. sir. हाँ, तो Chinmay sir. he will discuss in protista. Okay. तो बाय जॉब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट हम थोड़ा सा समझने लगे। टुडे वी विल गो टू एनिमल्स। Excuse me, sir. यस बोलिए। सर वो सिक्स किंगडम सिस्टम में वो जो क्लासिफिकेशन है वो बेस है जीन सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए। आरएनए स्ट्रक्चर। यस, तो वो क्या है सर? पता नहीं। अगर आपको अभी तक आरआरएनए क्या है नहीं मालूम है तो आपको अभी बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा। हम अब पढ़ेंगे उसको बायोमोलिक्यूल्स में। अभी 2 ढाई 3 महीना लग जाएगा उसको, ठीक है। So by in your 9th 10th you should have known what are ribosomal RNA. बेसिकली मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। दे आर आरएनए विच मेक राइबोसोम्स, ठीक है। एंड राइबोसोम्स जो है वो इवन प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है एंड यूकैरियोट्स में भी मिलता है। इसीलिए हम लोग उसका जो क्रोमोसोम है या उसका जो जीन सीक्वेंस है उसको स्टडी कर कर कंपेयर करते हैं, राइट। Which screen are you seeing now? Are you seeing this R.S. Whitaker screen 1969? All of you? Yes sir. Yes, sir. Yes Yes, sir. चलिए, sir. तो इसीलिए आपको because basically when I expect you students, I expect they should have known these things. क्योंकि अभी आरएनए डीएनए हम पढ़ेंगे बहुत देर बाद, ठीक है। तो इसलिए 16S rRNA इज अ टाइप ऑफ आरएनए। ये पढ़ लेते हैं 9th क्लास में। आपका सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी में आपका राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स में हम बता देते हैं कि क्या क्या होता है। ओके, तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 3 आरएनए होता है, 23S, ओके, 5S एंड 16S, ठीक है। तो उसी तरह से यूकैरियोट्स में 4 आरएनए होता है, राइट। तो दीज आरएनएस आर कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। ओके, so now we have discussed this table, this diagram very carefully. Is there any issues with this diagram? Somebody's mic is on, it is blurring. Please switch off your mic. Yes, so now we will go into 6 kingdom classification. So in 6 kingdom classification, actually problem was in Whitaker's classification, they have placed Archaebacteria and Eubacteria close to each other. समझ रहे हो? तो Archaebacteria and Eubacteria are both placed in Monera. But the problem is that Archaebacteria is very different from Eubacteria. Understand? The Archaebacteria is very different from Eubacteria, and they exist, yeah, they are found in locations where one cannot imagine. समझ रहे हो? Like I discussed yesterday, like hot water springs, geysers, alkaline beds, acidic pools, highly saline water bodies. माने do you know Dead Sea? Yes What sir. is Yes, the sir. Yes. speciality of Dead Yes, Sea? sir.
Sir, it's very High salty. soil It content. is very very salty, and even fat person like JJ's, he will not sink in the Dead Sea. So if I fell in the Dead Sea, I will be floating. तो समझ रहे हो? You imagine the concentration of salt, but still you will find these organisms there. Okay, so it is so salty that we don't expect life, but you will find archaebacteria. Okay, so that is why they are found in very very unimaginable circumstances. But जो normal bacteria, eubacteria, it is found in, they cannot be found in those dangerous situations. So that is why people were in a odd shape, that you should not place them together. Okay, now Carl Weiss. Carl Weiss, I have shown you his photograph here. So they are RNA biologists. Okay, Carl Weiss, Candler, Wheelis, they all are RNA biologists. So all these RNA biologists, what they are doing? So they uh, found out that archaebacteria and eubacteria are very very different from each other if we compare the 16S ribosomal RNA structure. Understood? So this is the case. Now yesterday I asked all of you to go and see the videos in YouTube. Could you see it? Could you find it? Yes, sir. But I Yes, have sir. seen a lot of children, they have seen the video but they have not given like. So did you not like the video? So if you would have liked the video, you should click like na. And even if you, I saw there is no question there. तो जो आप वीडियो रिलेटेड डाउट्स पूछ रहे थे, आप वही पूछ सकते थे. So I would have responded there. Plus I have seen a lot of children have not subscribed. So if you don't respect judges, judges will not respect you back. इसीलिए आपने जो ये गलती किया है, इसीलिए आपको आज से PDF नहीं मिलेगा for 1 year. Do you find it? Is it okay to be with you? Is it okay with you? Am I not audible? Yes, sir, you're audible. Means you are okay, तो then no video is good. चलिए, then thank you. Please, तो इसलिए आज से आपको वीडियोस नहीं दिया जाएगा. Only Prime 40 will be given videos. Okay? Because of your misbehavior towards judges. चलिए, so इसलिए ये सब आप खुद ढूंढ लेंगे या आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के बुक्स में मिल जाता होगा. Now let us compare this diagram. This is a beautiful diagram. They have used colors. What does this mean actually? Okay, देखो कितना सुंदर डायग्राम इन्होंने बनाया. तो when we were classifying plantae, तो suppose let us make a box. तो ये आपका plantae है. इसका मतलब all these things under till here, they were put in plantae in the two kingdom classification. कोई डाउट है? तो suppose if you are comparing plantae in 2 and 6 kingdom, so what were in plantae? Bacteria, archaebacteria, protista, almost all, fungi and plantae. All of them were together placed where? In plantae. And the rest were placed in animals. तो अगर आप देखोगे तो जनरली एनिमल्स का जो इंक्लूजन में कोई खास फर्क नहीं आया. ओनली सम ऑफ देम विच आर इन प्रोटिस्टा, they are there, but otherwise 99.99% times Animalia of the past is similar to Animalia of the present. Is this point understood? As I told you, concept of JJs will be difficult, and now it has become more difficult because you will not get these notes as PDF. So you have to study very seriously in class. ये Sorry, point sir. under, हाँ बोलिए. Sorry, sir.
हाँ क्या हो गया बोलो, सॉरी क्या समझ में नहीं आया? सर मैंने तो नोट्स लिखा था सर। हाँ सुनिए, प्लीज लुक हियर। देखो वो तो आप जानते हो कि जजेस जो बोल दिया वो फाइनल होता है बस। अब मैंने आपको चाहिए नहीं ना, बिकॉज ये सब आपको मिल जाता है, वो काजू किशमिश का जो नोट है, कालू एंड अदर्स, यू विल गेट दिस नोट्स। तो इसलिए आपको जजेस का नोट का रेस्पेक्ट नहीं है अब क्या? चलिए, तो अब यहाँ देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो जो पहले टू किंगडम में रखा गया था, एक्चुअली वो सब कौन कौन थे? बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट। इन टू किंगडम ऑलमोस्ट ऑल वेर प्लेस्ड वेयर? इन प्लांट। ठीक है, अब इसको थोड़ा शॉर्टन कर दिया जाए। फिर लोगों ने क्या किया, अब इसको अलग कर दिया। क्या अलग कर दिया? वी सेपरेटेड, नाउ अब जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, अब वी क्रिएटेड ए थर्ड किंगडम, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। तो समझ रहे हो? तो अब ये सारे प्रोटिस्टा में थे। ओके, ऑल ऑफ देम वेर इन प्रोटिस्टा, प्लांटी एक्सक्लूसिवली अलग हो गया। फिर लोगों को गड़बड़ लगा कि नहीं नहीं, फंजाई तो प्लांट जैसा है, तो आप फिर फंजाई को भी प्लांटी में ले आए। सो नाउ दिस इज व्हाट, सो दिस इज योर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छे से समझिए ये सब, ओके, बिकॉज आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स। सो नाउ दिस इज योर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो इन द फर्स्ट किंगडम जो आपका प्रोटिस्टा कहलाया, उसमें मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों आ गए, एंड जो प्लांटी में फंजाई एंड प्लांटी दोनों आ गए, एनिमलिया अभी भी एनिमलिया है। अंडरस्टूड? फिर लोगों को टेंशन हुआ कि दूर, प्रोटिस्टा तो यूकैरियोट है, बैक्टीरिया तो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, अलग करो। तो फिर लोगों ने क्या किया, एक और फाइलम क्रिएट किया। सो व्हाट इज दैट फाइलम कॉल्ड? सो दैट फाइलम इज कॉल्ड, बताइए, दैट फाइलम वाज कॉल्ड मोनेरा। तो इसीलिए पकड़ना मुश्किल है। सो अब ये जो आपका डिब्बा है, अब इसको फिर लोगों ने अलग कर दिया। सो दिस वाज मोनेरा, ए न्यू फाइलम। ओके, तो आप ये सॉरी, इसको न्यू वाले को हम अलग कलर से बनाएंगे। ये हमारा प्रोटिस्टा आ गया। सो दिस इज, दीज आर ऑल इन प्रोटिस्टा, एंड वी क्रिएटेड ए न्यू फाइलम दैट इज नोन एज मोनेरा। तो नाउ ये सारों को फिर मोनेरा में रखा गया। तो नाउ हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? 4 किंगडम्स, Four है king. कि नहीं? फिर विटाकर को प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया विटाकर को? बताइए कि फंजाई प्लांट जैसा नहीं है, तो भैया आप उसको साथ नहीं रख सकते। तो फिर व्हाट दे डिड, दे हैड इश्यूज विद फंजाई। तो उन्होंने क्या किया, जो फंजाई है उसको अलग कर दिया। ओके, सो नाउ व्हाट दे डिड, दे removed planty, and they created a new taxon that is called fungi. So now these are the 5 kingdom classification. समझ में आया? बट Yes. उसके बाद फिर कार्ल वीज को टेंशन हो गया, अरे यार आपने दो तरह का बैक्टीरिया को एक ग्रुप में डाल दिया, हटाओ। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने आपका आर्की बैक्टीरिया को हटा दिया। सो ही क्रिएटेड अनदर न्यू किंगडम, and that is called what? So that is called your Archaebacteria, and he created a new kingdom. आया समझ? So now this is the 6 kingdom classification. तो इसका मतलब बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई सारे प्लांटी में थे। ओके, एंड नाउ, so did you understand this drawing, why what I meant to by making these boxes? Yes, sir. Yes, But sir. अब क्या हुआ, अब हम लोग क्या किए, सॉरी,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सुपर ग्रुपिंग करेंगे। कार्ल वीज जब उन्होंने 6 किंगडम बनाया, फिर उनके मन में एक लड्डू फूटा, अगर हम चाहें तो ये पूरी दुनिया को एक सुपर किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं? What I told you in taxonomy, always there will be lumping and always there will be splitting. कोई शक? So No. always there will be lumping and always there will be splitting. तो अभी उनको लंप करने का एक नया कंसेप्ट मिल गया। क्या, कैसे किया जाए? हाउ टू लंप बताइए। We will make super Cell type. kingdoms. हाँ, हाउ टू क्रिएट ए सुपर किंगडम। सेल टाइप कंसिडर करके। यस, सेल टाइप एंड स्पेशलिटी। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये चारों किंगडम को ले लें, ये सारे यूकैरियोट्स हैं, ओके, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स, बट जो ये दोनों हैं, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, बट ये दोनों प्रोकैरियोट, तो ऑल ऑफ देम हैव सेम या सिमिलर 16s RNA, ठीक है? चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे वो एनिमलिया हो, सबका 16s RNA में रिजेम्बलेंस है, बट वो बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया से अलग है, इसीलिए हम लोग उनको लंप कर सकते हैं। तो कैसे लंप करेंगे? हम लोग सारे यूकैरियोट्स को इकट्ठा कर देंगे, फिर आर्कीबैक्टीरिया को इकट्ठा कर देंगे, फिर बैक्टीरिया को इकट्ठा कर देंगे। So now how many super kingdoms we have? 3. 3 super kingdoms. Understood? तो इसीलिए यूकैरियोट्स में हम किस किस को रखेंगे? ऊपर ले लो। तो बोलिए कौन कौन है यूकैरिया में? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमलिया। वेरी गुड। अब आप समझ रहे हो ना, मैं ये डिब्बा से क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? That Yes, sir. all these Yes, sir. 4 are now where? Eukaryotic. Eukarya. In Eukaryote. So what is the taxon of eukarya? Super kingdom. Domain. So the term that was given is called domain. समझ में आया? एंड आर्कीबैक्टीरिया को हमने अलग कर दिया एंड बैक्टीरिया को अलग कर दिया। So now how many domains are there today? 3. 3 domains. C. Now, can anybody tell me, is Manjishta present or absent today? I'm present, sir. Yes, good. So, can you tell me what do you understand by the meaning archibacteria? बताइए, anybody can tell archibacteria का मतलब क्या है? Ancient bacteria. Ancient bacteria, because archi means primitive, bacteria मतलब bacteria. Now, तो अगर आपको कोई पूछे कि who is more advanced, बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, तो आप क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो सबसे एंशियंट है आर्कीबैक्टीरिया, फिर आएगा बैक्टीरिया, फिर आएगा यूकैरियोट्स, है कि नहीं? यस सर। But what does this diagram tell you? Archibacteria is more advanced. बैक्टीरिया सबसे पुराने थे। फिर कौन आया? आर्कीबैक्टीरिया। फिर कौन आया? यूकैरिया। Eukaryote. समझ में आया? तो इसीलिए जो आपका नॉलेज था वो करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। जो आपको किसी ने गलत। पढ़ाया था वो करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। तो रॉन्ग है किस आधार पे? 16S rRNA एनालिसिस के आधार पे। ओके, तो 16S rRNA के माने इट डज नॉट मीन कि एंशिएंट,
तो 16S rRNA के आधार पे आर्कीबैक्टीरिया आर क्लोजर टू यू बैक्टीरिया, क्लोजर टू यूकैरियोट्स, एंड बैक्टीरिया आर फार्दर फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रीअरेंजमेंट किया। एंड ये एक ऑलमोस्ट गारंटेड क्वेश्चन होता है ओलंपियाड्स और केवीपीआई में। तो वो आपको पूछेंगे कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, because archaebacteria are highly advanced. They resemble what? Your eukaryotes. समझ में आया? Now do you understand this diagram? यस सर। चलिए, तो अब लेट मी प्रूव इट। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम अब आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जजेस का इंसल्ट कर दिया तो अब आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो आपको ये खुद चलाना पड़ेगा। चलिए, तो अब अगर आप देखेंगे ये ओरिजिनल सेल है, फाइन। सो दिस इज द ओरिजिनल एंसेस्ट्रल सेल। तो उसके कितने ब्रांच हुए बताइए? हाउ मेनी ब्रांचेस? 2 ब्रांचेस। एक इधर गया एंड एक इधर गया, फाइन। सो इधर एक ब्रांच गया एंड एक ब्रांच उधर गया। कोई शक? So one No. branch went here and one branch went here. Understood? So what are these branches? These branches are going towards eubacteria, and this branch is going towards common ancestor between archaebacteria and eukaryotes. देख रहे हो ना? तो पहला डिवीजन में ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट का कोई जिक्र ही नहीं था, देख रहे हो? सो देयर वाज नो यूकैरियोट इन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन माय डियर। तो आधे थे क्या? बैक्टीरिया और आधे थे क्या? आर्कीबैक्टीरिया। अब यहां देखिए, ये कॉमन एंसेस्टर है। सो दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड कॉमन एंसेस्टर बिटवीन होम। तो ये किस के बीच में कॉमन एंसेस्टर है? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। So this is actually a common ancestor between Archaebacteria and Eukarya. देख रहे हो? तो ये डायग्राम्स आपको ना कालू दिखाएंगे ना काजू किशमिश, ये एक ही गधा दिखाएगा, बट आपने उसका डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो गया अब ये सब आपके लाइफ से। चलिए, तो देख रहे हो? तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या लिखेंगे? कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। आप वहां से कितने एरोज ओरिजिनेट किए? 2 एरोज। एक चला गया आर्कीबैक्टीरिया एंड एक चला गया एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल। कोई शक? ना। तो जो आपका आर्कीबैक्टीरिया लाइन गया वो 3 तरफ चला गया। कौन कौन सा 3 तरफ? थर्मोफाइल्स। तो व्हाट आर थर्मोफाइल्स बताइए? तो दे लिव इन वेरी हाई टेम्परेचर्स, ओके, कॉमा, लाइक इन गीजर्स। उसको बायोलॉजिकल गीजर्स बोलते हैं, समझ रहे हो? एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ देम इन न्यूजीलैंड एंड प्लेसेस लाइक दैट। ओके, तो जो लोग गीजर्स में रहते हैं उनको हमने क्या कहा? थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स। नाउ इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे, है कि नहीं? तो उसके बाद जो लोग हाईली सॉल्टी कंडीशंस में रहेंगे, लिव इन वेरी सॉल्टी क्या हैबिटेट्स, ओके, तो लाइक सॉल्ट बेड्स, ओके, तो उसको क्या कहेंगे? हैलोफाइल्स। एंड जो लोग मीथेन, तो दे लिव इन मीथेन पूल्स, उसको हम लोग मीथेन पूल्स बोलते हैं। तो दे आर नोन एज व्हाट? मीथेनोजेंस। और भी डाइवर्सिफिकेशन है इसमें,
ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, आर्की बैक्टीरिया। एंड अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो दे आर क्लोज टू हुम, एनिमल Animalia. एनिमल्स। तो दे आर वेरी वेरी क्लोज टू एनिमल्स, जबकि बैक्टीरिया इज वेरी वेरी क्लोज टू Plenty. प्लांट। Plenty. ओके, तो लाइक दैट। चलिए अब तो आप देखेंगे, तो इसीलिए ये जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक लाइन आया, अब ये कहाँ चला देखते हैं इसके बारे में। तो ये चला गया फिर एक क्या, इट गेन टू नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा से एक लाइन चला गया आपका फंजाई एंड एनिमल एंसेस्टर पे, और एक लाइन चला गया आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ओके, ये सब क्या है ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, या बॉटनी सर अगर बता दें तो बढ़िया है। तो किसी ना किसी तरह इन लोगों में क्या आ गया होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो इसीलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ, क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसमें आएगा। ओके, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का ओरिजिन हुआ, एंड इसमें नहीं हुआ, तो इसीलिए वो नॉन फोटोसिंथेटिक हो गए, ये फोटोसिंथेटिक हो गए। कोई शक? चलिए, तो अकॉर्डिंगली एंड क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल होता है एंड आपके ज़ैंथोफिल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है, तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। सो व्हाट आर दे आर एक्चुअली प्रोटिस्ट्स। पहले एल्गी को प्लांट्स में रखा जाता था, अब हमने उसको क्या कर दिया, प्रोटिस्टा में ले गए। ठीक है, एंड उससे ग्रीन एल्गी का एक जो ब्रांच है वो बन जाता है क्या, ग्रीन प्लांट्स। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। Yes, sir. Yes. So now we can remove all these things. चलिए, तो अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए, तो अब तो नाउ वी नो दैट हु इज मोर एडवांस्ड, बताइए। That archaebacteria are more advanced with respect to what, bacteria। ठीक है, चलिए, so this is our concept। अब हम लोग चले जाएंगे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप देखिए, हाँ बोलिए। सर वो वहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया एक आरो से लिखा था, क्यों? और वो क्या है पता नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया आया होगा उसमें, बिकॉज वो एरोबिक हो गया होगा। पहले एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे, फिर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आए। एक्चुअली योर बॉटनी टीचर ही शुड डिस्कस दैट लोअर पार्ट इन डिटेल। एक्चुअली आई डोंट नो सर आपका डिटेल पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी अकेला पढ़ा देंगे। अगर अकेला एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आपको मालूम है वो सब नहीं मिलेगा, बट अगर आप बिकॉज दीज थिंग्स आई डोंट टीच इन स्कूल, ओके, आई टीच इन होमवर्क। सो इन क्लास वर्क ये आपको चिन्मय सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आपको हायर बुक्स देखना पड़ेगा, राविन जॉनसन, कैम्बेल रीस। बट आपने कल जो किया उसके बाद वो मिलना गड़बड़ हो गया। चलिए, तो आप ये देखिए, ये आपका सिमिलैरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। क्या क्या सिमिलैरिटीज है बोलिए। प्रोकैरियोटिक सेल है, साइज 1 से 10 माइक्रोन है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, मेनली यूनिसेल्युलर है, कैन फिक्स नाइट्रोजन और ग्रो एट टेम्परेचर्स अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ बैक्टीरिया भी अबव 80 ग्रो कर सकते हैं, ओके, लाइक आर्कीबैक्टीरिया। बट क्या डिफरेंसेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इसको ध्यान देंगे। तो इसमें सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकैन लिंकेज नहीं होता है। ओके, इसको हम लोग ईथर लिंकेजेस बोलते हैं। वो जब सर अगर आपको आर्कीबैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन फैटी एसिड्स। ओके ओके, जो लिपिड होगा उसमें फैटी एसिड्स होंगे, इसमें फैटी एसिड लिपिड्स नहीं होंगे।
Okay, can use chlorophyll in photosynthesis. Do not use chlorophyll. Sensitive to streptomycin antibiotic. Okay, they are insensitive. Okay, cannot generate methane. इसमें कुछ लोग कर सकते हैं, जो मिथेनोजेंस हैं वो जनरेट कर सकते हैं. जीन्स डू नॉट कंटेन इंट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एंड ये जो है इसमें जीन्स कंटेन इंट्रॉन्स. तो ये आपका हायर फीचर है, यूकैरियोटिक फीचर है. क्या सब संकल्प, डू यू नो व्हाट आर एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स? संकल्प, डज एनीबडी नो व्हाट आर? No, sir, I क्या don't. आप लोग क्या पढ़ रहे थे 9th-10th में, मुझे समझ में नहीं आया. Does anybody know what is? I think Sthita should know what is exon intron. Sthita, do you remember or you have forgotten? Forgotten. Very good. Latin khao. चलिए, actually what happens? Suppose आज आप लोगों ने तो गड़बड़ कर दिया मंजिष्ठा. Are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. So then what you will, कौन सा कार्ड आप मुझे भेजेंगे? Sir, a sorry card. We are very very sorry sir. Will you send me a card? Yes, sir. Obviously, we have done a mistake. Then we should ask for apology. चलिए, तो आप जो सॉरी कार्ड भेजेंगे आज का न्यूज़पेपर से काट कर भेजेंगे. आज का जो न्यूज़पेपर है उसका आप सेकंड पेज लेंगे एंड उसमें से आपको सॉरी कार्ड बनाना है. तो व्हाट विल यू डू? Sir, I'll cut the second page of the newspaper यस. and then fold it and make a card. नो 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 नो, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. कार्ड तो आपको मेरे लिए एक पेपर, व्हाइट पेपर में बनाना है ना. आप Yes, एक A4 पेपर लेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे, उसमें मुझे चाहिए वी आर सॉरी सर, काइंडली फॉरगिव अस, ओके, वी विल नॉट डू द मिस्टेक. ठीक है, तो ये अक्षर कहाँ से लाएंगे? The newspaper, sir. यस बेबी. अब आप न्यूज़पेपर में ढूंढेंगे वी कहाँ लिखा है बड़ा वाला, आर कहाँ लिखा है, सॉरी कहाँ लिखा है ये. ओके, तो ये सारे वर्ड्स को आपको न्यूज़पेपर से काट कर लाना है एंड चिपकाना है एक पेपर में. तो जो पेपर में चिपकाओगे वो मेरे को भेजोगे, तो वो कार्ड हो गया, है कि Yes, नहीं? sir. तो वी आर सॉरी सर, वी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक. ऑल ऑफ अस विल सब्सक्राइब टुडे एंड क्लिक द बेल आइकॉन and we will repeatedly visit the site and write our comments and ask our doubts and solve MCQs. ये सब लिख दिया? Yes, sir. Card is ready. Yes, sir. Now you can send me. तो बचा हुआ पेपर का क्या करेंगे? Sir, recycle करने के लिए दे देंगे या फिर कुछ फेंक use देंगे. कर. You will throw it or recycle it. Okay? Yes. आप समझ में आया? तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, उनके पास उतना जीन्स नहीं होता है, तो इसीलिए उनका डीएनए बहुत कम होता है. इसीलिए उनका जो मैसेंजर आरएनए है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू डीएनए होता है इन लेंथ. उनका लेंथ में एग्जैक्टली सिमिलर होता है. ओके, तो इसीलिए उनका वेस्टेज नहीं होता. बट जो आपका फाइन, जो आपका यूकैरियोट्स है उसका डीएनए इज लाइक ए न्यूज़पेपर. so much data available, but how much was useful? Very less. तो जो यूजफुल डाटा है, that part of DNA which will make the mRNA, उनको कहते हैं exons. Understood? That part of the DNA which will make mRNA are called what? Exons. ठीक है? And that part of the DNA which will not be there in the mRNA, so they are called introns. समझ आया? तो इसीलिए
आप mRNA में किसको रखेंगे, एक्सॉन्स ना इंट्रॉन्स? Exon. एक्सॉन। एंड किसको फेंक देंगे, Intron. इंट्रॉन्स। समझ में आया? तो इसीलिए यूकैरियोट्स में आपका इसीलिए इन केस ये सब आप पढ़े नहीं हो कुछ भी, इसीलिए आपका जो यूकैरियोटिक आरएनए को एचएनआरएनए बोला जाता है, हेटेरोजीनस आरएनए। उसमें क्या होता है, एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स। समझ रहे हो? तो इससे हम क्या बनाएंगे, बोलिए, व्हाट विल वी मेक फ्रॉम दिस? वी विल मेक mRNA। तो जब हम mRNA बनाएंगे तो व्हाट इज mRNA? hnRNA माइनस व्हाट, इंट्रॉन। एक्सॉन तो होगा ना भैया mRNA में, तो इसलिए hRNA माइनस इंट्रॉन्स इज इक्वल टू मैसेंजर आरएनए। तो इसका मतलब किसके आरएनए में ज्यादा माल होता है, यूकैरियोट्स के ना प्रोकैरियोट्स के? यूकैरियोट्स। ओके, बट आर्कीबैक्टीरिया में भी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब वो किसके क्लोज है, बैक्टीरिया के ना यूकैरियोट्स के? तो समझ में आया? अब देखो कितना बड़ा बड़ा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल दीज कंटेंट आर फ्रॉम द बेस्ट बुक्स इन द होल वर्ल्ड, बट स्टिल यू डोंट रेस्पेक्ट जजेस, है कि नहीं? चलिए, तो ये देखिए, तो इसलिए आप जब वहाँ बॉटनी में पढ़ेंगे ये सब, आपको देखना है कि सर ये पढ़ाएं, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए, नाउ लेट्स गो अहेड। तो ये देखिए 3 डोमेन हमारे हो गए। तो इसलिए सबसे पहला, यू नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इसको हम लोग क्लैडोजेनेसिस बोलते हैं। एंड INBO NSCB का ये गारंटेड क्वेश्चन है। तो सपोज मैं आपके लिए एक ड्राइंग करूं, नाउ टेल मी विच इज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ओके, तो मैं आपका एक ड्राइंग कर रहा हूं, sorry, now see here, okay, एक ब्रांच है like this, तो दिस इज आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। एक ब्रांच है like this, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। एक ब्रांच है like this, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरिया। एक ब्रांच है like this, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। एक ब्रांच है like this, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। Which is the best representation of your option three-domain E. structure? Option E. Option E. Why? Why not D? Same thing तो है। Sorry, C, C. C is, अरे C, D, C is same. BAE, BAE. पर सर C में it shows that bacteria. चुप, देखो पहले देखो ये तो BAE है ना, एंड ये भी BAE है, फिर फर्क क्या है ब्रांचिंग में? बताइए। more close to E in E option. Why E ऑप्शन? आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपका बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा मैं इधर। यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। Sir, Follow. in option C, Archaebacteria is placed in the branching of bacteria, whereas Archaebacteria is closer to What does that eukaryotes. mean? What Sir, does the that first mean? branching point is one who have introns and one who What do not have does introns. that mean? So So that that means means that Archaebacteria are similar to bacteria. Yes, close to, not similar. That Yes, sir. means Archaebacteria and bacteria have common ancestor. Actually ये point क्या बताता है आपको
ये पॉइंट बताता है। यही सब देखो, आप देखेंगे कि ये आपका दूसरे सर नहीं बताएंगे ये सब। ओके, तो ये देखिए, तो अब आप बताइए ये आपका कौन है कॉमन एंसेस्टर? तो सी डायग्राम में हु हैव कॉमन एंसेस्टर? Bacteria and archaebacteria. In E, who has common ancestor? Archaebacteria and Eukaryotes. So what is actually correct? Option E. मतलब भाई देखो, नाम तो बताता है बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया सेम है, तो दे शुड हैव कॉमन एंसेस्टर। देन हु टोल्ड दे हैव आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट हैव कॉमन एंसेस्टर? 16S rRNA analysis. Okay, now can you prove with this point, ये जो इंट्रॉन पॉइंट में कॉमन एंसेस्ट्री, बताइए। Eukaryotes also contain introns. Archaebacteria also contain introns. Yes, so that is why, and And bacteria do not contain introns. so It is so separate. that means that archaebacteria is closer to eubacteria and not bacteria. Is it understood? Who was Yes. answering? Is it Supradeep? Yes, sir, Sauradeep. Sauradeep, good boy. Now देखो, you know who is a good student who can justify, because nobody is going to buy your nonsense stories. तो समझ रहे हो? आप देखिए, ये क्लोरोफिल वाला पॉइंट लेके मेरे को समझाओ सिमिलैरिटी। Eukaryotes do not have chlorophyll, and archaebacteria also do not have, but bacteria have, and they make the food with the help of chlorophyll. समझ में आया? तो actually what happens, most eukaryotes do not have chlorophyll, but plants have chlorophyll, my dear. Yes. फिर वापस क्लासिफिकेशन होगा। नहीं, सुनिए, अब आपका व्हाट डज इट सजेस्ट, हु इज मोर एडवांस्ड, एनिमल्स और प्लांट्स? Animals. यस, इसका मतलब है कि एनिमल्स जो हैं वो क्लोजर टू आर्कीबैक्टीरिया है, एंड जो प्लांट्स है वो क्लोजर टू बैक्टीरिया है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ कैन यू प्रूव दिस पॉइंट नाउ? अब ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये वाला पॉइंट? तो आपको Yes, sir. अजीब लग रहा होगा, Yes, क्या sir. सर बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को अलग अलग लगा दिए? क्यों मैं लगाया? क्योंकि एनिमल और आर्कीबैक्टीरिया दोनों के पास क्लोरोफिल नहीं है, एंड प्लांट एंड सम बैक्टीरिया दोनों के पास क्लोरोफिल है। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई डिड लाइक दिस? चलिए, Yes, because sir. see, as I told you, I am a science teacher. I have to justify my answers. You are not sitting here to agree to my answers. Okay, so I hope I have justified. Yes, sir. चलिए, so let us rub these things. Okay, चलिए, तो आप देख रहे हो, तो ये गारंटेड क्वेश्चन है आपका, क्या, KVPI एंड अदर गुड एग्जाम्स का। चलिए, तो दिस इज आवर, तो ये हमारा काम खत्म हो गया क्या? तो आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू टू द कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, अब ज्यादा मैं इधर नहीं घुसूंगा क्योंकि फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो द अदर एस्पेक्ट्स विल बी टॉट टू यू बाय सर। ओके, बट प्लीज इंसिस्ट कि थोड़ा ज्यादा बताएं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये कुछ भी दिया नहीं है। ओके, एंड आजकल मॉडर्न बायोलॉजी काफी अलग है। Do you understand? So now we will go to kingdom Animalia. Yes, sir. चलिए, Yes, so sir. now so let us go to kingdom Animalia. Fine. तो आप थोड़ा सा, somebody still waiting in lobby. Who is this waiting in lobby? सौम्यजीत चट्टोपाध्याय। Okay, चलिए। Actually, please join in time. उससे क्या होता है ना, हम लोग कुछ ज्यादा पढ़ पाएंगे। Now, अब हम लोग चलते हैं to the world of what? To the world of animals. So, and we know that animals जो है
आप they belong to the what? It is one of the eukaryotic phylums. ठीक है जी. Now, so let us go ahead. So now let us go to the whiteboard. So is the whiteboard visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए. sir. So now, हाँ बोलो बोलो. So now we will go into the concept of what? We will go into the concept of animals. Okay. So suppose हम लोग animal cell के बारे में बात करें. So can you tell some points with respect to animal cell? बताइए. सबसे पहले आप बताइए सेल वॉल. Absent. Cell wall is absent. Relax cell wall. So we do not have any cell wall. Cell wall. Okay, but glycocalyx may be present. Okay, glycocalyx may be present. Understood? तो ये आपका हो सकता है, but cell wall जैसा कोई चीज नहीं है. Another Excuse point me, sir. बताइए. हाँ बोलो. Sir, what is glycocalyx? Please, my dear, you will not ask those questions because they are all cell biology you have to discuss. ये सब आपको अभी तक आना चाहिए था. When I am teaching you, I presume you know these things. Okay? But if you don't know, you have to wait till cell. तो बहुत टाइम लगेगा आपका, 3-4 महीना लग जाएगा. Again, this will be taught by your botany teacher. तो जब पूछ लिए हो तो मैं आपको बताऊं. Have you caught a fish? कभी एक मछली पकड़ा हुआ है आपने हाथ से? No, sir. तो अगर आप उसको पकड़ोगे ना तो फिसल जाता है. क्यों फिसल जाता है? बिकॉज उसमें आपका स्लाइम होता है. ओके. नाउ स्लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं ओडिया में? लाड़ो. लाड़ो. ओके. जैसे भिंडी में होता है, आपका नाक का घी में होता है. नाक से घी निकलता है, आप देखे हो कि नहीं? आजकल नाक से घी निकलना भी टेंशन हो गया है, बट आप नाक का घी देखे हो? यस सर. नो. Yes, sir. आपने उसको फील किया है कभी हाथों से? Yes, sir. तो वो कैसा लगता है? स्लिपरी स्लिपरी. तो वो जो स्लाइम है, इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स. And that is highly slippery and it does not allow water to disturb the cell. So that coat outside the cell is called glycocalyx. Okay? बाकी जब आप पढ़ोगे तब आपको बताएंगे सब. ठीक है? चलिए. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सेल बताइए फटाफट. सेकंड पॉइंट. So they contain centrosomes. Very good. So they have centrosomes. What are centrosomes, my dear? So centrosomes is equal to what? The cell organelles that help in cell division. No, that is not my answer. You know, JJS is the toughest biology teacher because उसको बने मुझे सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है because I need pure biology. तो what is centrosomes? Anybody can guide me? आपने centrosome term use क्यों किया? आपने कर दिया इसलिए गड़बड़ हुआ ना, मैंने पूछ लिया. Yes. What are centrosomes? बताइए. Anybody who knows it? फटाफट. So they are centrioles plus matrix. Okay, so this is called centriole plus matrix. Actually आपको centriole बोलना चाहिए था, बट आपने centrosome बोला, बहुत अच्छा किया, बट आपको उसका डिटेल भी मालूम होना चाहिए. तो centrioles क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू NCERT, ये करेक्ट नहीं है एक्चुअली, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, centriole helps in the formation of spindle fiber. तो जो सेल डिवीजन में मदद करता है. अंडरस्टूड? तो चलिए
तो ये आपका सेंट्रियोल्स आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। एब्सेंट। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद और एक पॉइंट बताया जाए। Unlike plants having a large vacuole, they have small vacuoles. Yes, they have smaller vacuoles. ओके, उनमें स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं एंड न्यूमरस होते हैं, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है एंड वो भी सेंट्रल होता है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट। जितना आप बोलेंगे ना उतना मजा आएगा। हाँ बोलो। यस, दे डू नॉट हैव plastids. So they do not have plastids. So do not have chlorophyll. So cannot synthesize what? Synthesize own food. ठीक है, तो ये हम खाना बना नहीं सकते। Therefore हेटेरो क्या? ट्रॉफिक। So therefore we are heterotrophic. हम मजबूरन हेटेरोट्रॉफिक है। But what is the problem with heterotrophy now? बताइए। अब जो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं तो उसमें आपका हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम फंगस? बताइए। We are holozoic. Yes. We are holozoic. So this is called ingestive heterotrophy. Ingestive heterotrophy. Understood? So what does ingestive heterotrophy mean? It is also called holozoic. So what is holo? Holo means totally and zoion का मतलब होता है एनिमल्स। तो वी आर टोटली लाइक एनिमल्स। तो हमारा जो हेटेरोट्रॉफी है लाइक एनिमल्स है। मतलब क्या है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? इंजेशन, देन डाइजेशन, then absorption. फाइन। एंड जो नहीं अब्जॉर्ब हुआ, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, उसको इजेशन। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए आप इस तरह से आपके बहुत सारे एनिमल्स पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नाउ इसीलिए आप व्हेन वी सॉ एनिमल्स, अब हम उसको क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। ओके, नाउ वी विल ट्राई। muted. चलिए, actually I was asking my son how to move this board. Actually what happens in Zoom, we could go to the next page, but इसमें next page option है कि नहीं पता नहीं। Okay, so that is the case. सर हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैं लॉगिन नहीं हुई हूँ ना, उसीलिए बोर्ड दिख नहीं रहा है मुझे। क्या नहीं किया तो अब उसमें मैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सर वो हो नहीं रहा है एक्चुअली, पासवर्ड की प्रॉब्लम, इसीलिए बोर्ड नहीं दिख रहा।
So nothing to worry, this video will be uploaded. आप आराम से जाकर YouTube में देख सकते हैं. Okay? Okay, sir. Thank you. All my videos will be uploaded. यही तो मैंने आपको बोला था, आप सुने नहीं, आपने किसी ने उसको ये नहीं किया, बट सारे वीडियोस अपलोड हो जाते हैं. उससे प्लस पॉइंट क्या होता है कि अगर आपसे कुछ छूट गया तब भी आप उसको बाद में देख सकते हैं. बट आपने समझा ही नहीं वो बात मेरा, एंड आपने इंसर्ट कर दिया जेजेस का, तो लाइक दैट. चलिए, सो नाउ लेट्स सी. एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई विल हैव टू इरेज द बोर्ड. ओके, सो जनरली इन जूम ये बोर्ड को हम नेक्स्ट पेज कर सकते थे, पर यहाँ नहीं हो रहा है. चलिए, सो एंड आपने अभी पीडीएफ लेने से भी मना कर दिया, तो अब आप कैसे करोगे पता नहीं. चलिए, सो दिस इज द केस. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली एनिमल्स. समझ रहे हो? तो जो अब हम लोग एनिमल्स डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक डिक्शनरी. ओके, सो वी विल मेक ए डिक्शनरी. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? एक डिक्शनरी बनाएंगे. क्यों बनाएंगे बोले डिक्शनरी? ताकि हम वर्ड्स को समझ सके. डू यू अंडरस्टैंड? अदरवाइज व्हाट हैपेंस, मैं पढ़ाता जाऊंगा, आपको बाउंसर होता जाएगा. सो लाइक दैट. तो फॉर एग्जांपल, ओके, हाँ, तो अब आपका अगर मैं बाउंसर देखूं, तो ये डिक्शनरी है. तो नाउ आप जैसे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस टर्म्स. ओके, तो वी विल डिस्कस टर्म्स रिलेटेड. ये भी इतना बड़ा हो जाता है. टर्म्स रिलेटेड टू हैबिटेट. ठीक है, हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू हैबिटेट डिस्कस करेंगे. नाउ कितने तरह का हैबिटेट होता है आप बता सकते हो? तो बेसिकली हमारे पास अलग अलग तरीके का हैबिटेट आ जाएगा. कौन कौन सा? एक्वाटिक. ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एक्वाटिक. एंड फिर आ जाएगा क्या? टेरेस्ट्रियल. ठीक है, तो इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स में. तो सबसे पहले एक्वाटिक हैबिटेट आ जाएगा, एंड उसके बाद टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आ जाएगा. ठीक है, तो नाउ लेट अस गो टू आवर पेज, बिकॉज ये बहुत लोगों को दिख नहीं रहा. आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल विद दिस राइटिंग बोर्ड. एक्चुअली इसमें है ना, इट इज नॉट एज गुड एज जूम, तो अनफॉर्चुनेटली. सो लेट अस गो हियर. तो नाउ अब हम लोग ये टर्म्स, इज दिस बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, दैट Yes, गर्ल sir. ऑल्सो? Yes, sir. आपको भी दिख रहा है बेटा ये? Yes, sir. चलिए, पहले उसको मैं भगा के आऊँ. Actually, I have to end that board. ये वाला स्क्रीन खुला है ना, इसको ब्लैक बोर्ड बंद कर देते हैं. अब लेट अस रीशेयर. ओके, so now is it in full screen, visible to all of you very well? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So now अब हम लोग क्या करेंगे? We will what? We will discuss the points. So now first point क्या है हमारा? Aquatic. Okay, so what does aquatic mean? बोलिए. Animals live. Animals that live in water. Water. तो वाटर में जो एनिमल रहता है, तो अगर आप भी एनिमल स्विमिंग कर रहे हो वाटर में, तो क्या आप एक्वाटिक हो जाओगे? नहीं. No, sir. No. तो इसीलिए व्हाट डज लिविंग इन वाटर मीन? मतलब दे शुड व्हाट? लिव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर. समझ रहे हो? तो आपको लिव, जीना भी वही है, ब्रीथ भी वही करना है, एंड रिप्रोड्यूस भी करना है. सो दे आर कॉल्ड व्हाट? एक्वाटिक एनिमल्स. कोई शक? Yes, sir.
चलिए No, समझ में sir. आया ना। अब ये जो एक्वाटिक हैबिटेट है ये अलग अलग तरीके, तो इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, लाइक गिल्स, ओके। कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे, Fins. फिन, या फिर अगर लेग है तो लेग ऐसा मॉडिफाई होना चाहिए ताकि आप तैर सके। अंडरस्टूड। इसलिए आप देखोगे जब डाइवर्स लोग पानी में कूदते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बोलिए। सो दे वेयर दोज फ्लिपर्स इन देयर लेग्स ताकि वो आराम से तैर सके। तो चलिए, अब जो एक्वाटिक में सबसे मोस्ट कॉमन हैबिटेट क्या है, दैट इज कॉल्ड मैराइन हैबिटेट। तो एनिमल्स लिविंग इन सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, वेयर, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सिर्फ सॉल्ट वाटर बोल देने से नहीं होगा, वेयर salinity is very high and salinity difference is very low. Can you explain this point, anybody? मतलब कि salinity बहुत ज़्यादा है and it is uniform all over the water. All over the water and throughout the day. Okay, very good. So, what is your name? Subhadeep. वेरी गुड बॉय, आई लाइक यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। चलिए, तो इसीलिए एक्चुअली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं सिर्फ नमक होने से ज़्यादा आप मैराइन हो जाएंगे, नो, ऐसे एस्टुअराइन भी अलग होता है, ओके। तो एस्टुअराइन हैबिटेट अलग होता है, ओके। तो बट एस्टुअराइन हैबिटेट में क्या होता है आपका, बताइए। तो एस्टुअराइन हैबिटेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता एंड थ्रू आउट द डे। जैसे आपका जब रात को हाई टाइड्स होगा तो समुद्र ज़्यादा चला आएगा तो सॉल्टी हो जाएगा, एंड अगर वो सुबह क्या होगा, लो टाइड होगा तो फ्रेश वाटर आ जाएगा तो लो सॉल्टी हो जाएगा। इसलिए उसका सैलिनिटी डिफरेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है। बट इधर सैलिनिटी हाई है बट डिफरेंस इज वेरी लो in the different parts of the day, okay। तो दिन के अलग अलग समय डिफरेंस इन सैलिनिटी नहीं होता, कोई शक। चलिए, तो उसके बाद जो पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे नीचे, रिवराइन या फ्रेश वाटर, ठीक है। तो रिवराइन या फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, दैट वहाँ वो लोग फ्रेश वाटर बॉडीज में रहते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेश वाटर बॉडीज, अगेन हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, सैलिनिटी बहुत लो होती है, लिव इन फ्रेश वाटर सोर्सेस, ओके, एटसेट्रा, वेयर salinity is very low and salinity difference is very low. लो ना, लो, क्योंकि हर समय क्या होगा, उसमें सैलिनिटी कम होगा, कोई शक। ये बहुत अब समझ में आया कि नहीं जो मैं बोला था कि जेजेस का पढ़ाई डिफिकल्ट है करके, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको समझेंगे। चलिए, तो अब एक और है, एक्चुअली वो मैंने इधर थोड़ा अलग अलग करके रखा है, तो एक और है हमारा यूरिहलाइन कंडीशंस, एस्टुअराइन कंडीशंस, ये वाला। तो एस्टुअराइन कंडीशंस में क्या होता है, दे लिव इन एस्टुअरीज। एस्टुअरी क्या होता है, जहां आपका मिलन होता है फ्रेश वाटर एंड समुद्र का। तो एट दिस पोजीशन द सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो इधर भी हम उसको पेस्ट कर देंगे, वेयर सैलिनिटी इज वेरी हाई, salinity is very high and salinity difference is also very high, ठीक है, in the different parts of the day. So at this position varies drastically in the various times of the day, okay। due, उसमें लिख सकते हैं हम लोग, due to high tides क्या होता है, salinity increases
in the nights, and due to low tides, salinity decreases in the day. कोई शक? No, sir. No, sir. So these are very very important discussions, क्योंकि आप अगर अच्छे से अभी से पढ़ोगे ना, सी मेरा मकसद पढ़ाने का ये है कि आपको मुझे बार बार समझाना ना पड़े। ओके, तो लाइक दैट। तो ये आपके 3 तरह के वाटर बॉडीज हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड उधर पेस्ट कर देंगे। इसके पहले वी विल पेस्ट। फाइन, ये तीनों को हम ऊपर ले आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, ये एनिमल्स की एस्टुराइन में रहते कैसे हैं सर? क्योंकि इतना अगर हाई डिफरेंस है सैलिनिटी तो उनका वाटर बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन सब खराब हो जाएगा सर। एंडोऑस्मोसिस एग्जॉस्ट। आर यू अ बंगाली? यस सर। I can easily identify दादाज। अब सपोज यू गो टू तमिलनाडु, आपका लाइफ में मजा आएगा ना, थोड़ा टेंशन हो जाएगा? बोलिए लैंग्वेज में। सर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब नौकरी छोड़ दे? नो सर। तो क्या करें? सर सीखना होगा। बस। तो बेटा अगर एस्टुअरी में रहना है तो सीखो, मेरे को रोक के क्यों बता रहे हो? आया समझ? तो those animals which have to live in the estuary, you have to adapt, otherwise मरो। ओके, बायोलॉजी में नेचर माफ नहीं करता है, आपको नेचर के अनुरूप होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो पाए, आप शान से मर जाइए, क्या दिक्कत है? दुनिया में लाखों लोग हैं। डू अंडरस्टैंड? सो इसके मतलब वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम थोड़े देर बाद बात करेंगे। ओके, डोंट वरी। सी जब जेजेस है तो कोई गम नहीं है, ये आप याद रखेंगे। जब हम हैं तो क्या गम है, समझ रहे हो? बट आप लोग मेरा बात ही नहीं सुनते। आपने कल मेरा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मैं कितना रोया कल। चलिए, तो इसलिए आज आपका एक अधिकार छीन लिया गया आपसे। अब नाउ लेट अस डिस्कस। तो ये आपका 3 एक्वाटिक टर्म मैंने इकट्ठा कर दिया, मराइन, एस्टुअराइन एंड रिवराइन। अब तो लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ दैट, माने व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली, राइट? उसका मतलब क्या है? तो जो आपका उस एक्वाटिक बॉडीज के अलग अलग टर्म्स आ जाएंगे, जैसे पेलाजिक। ओके, तो पेलाजिक का मतलब क्या है? दीज एनिमल्स, ओके, दीज एनिमल्स लिव फ्री इन ओपन वाटर्स। समझ रहे हो? ओपन वाटर्स का मतलब क्या है? जो ऊपर ऊपर दिख रहा है। मंजिष्ठा माय डियर, आर यू देयर? Yes, sir. दूर दूर तक जहां तुम्हारी नजरें जा रही हैं, वो सारा समुद्र मेरा है। जाओ खेलो। टाडा टाडा। समझ रहे हो पेलाजिक का मतलब क्या है? तो जहां तक आपके नजरें जा रही है, भाई आपका नजर थोड़ी नीचे चला जाएगा, आपका नजर ऊपर ऊपर घूमेगा। तो जहां तक आपकी नजरें जा रही है, वहां जो एनिमल्स घूम रहे हैं वो क्या है? पेलाजिक। Pelagic. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ओपन वाटर्स। उसी तरह से एक टर्म है एबिसल। एबिसल मतलब डेप्थ ऑफ द वाटर्स, ठीक है? तो डेप्थ ऑफ द वाटर्स, ओके, बेसिकली ओशन एंड सीज। तो जो एनिमल समुद्र के नीचे रहते हैं तो वो है एबिसल। ओके, नाउ टेल मी, एबिसल जोन का मतलब क्या है? सी बेड पर। नहीं नहीं, सी बेड पे नहीं डियर। एबिसल का मतलब जो है, माने वहां आपका लाइट जाएगा ना नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ओके, सो इसका मतलब एट डेप्थ्स, राइट? तो एट डेप्थ्स of 4000 to 6000 meters,
दिस जोन रिमेन्स इन परपेचुअल डार्कनेस एंड नेवर रिसीव्स डे लाइट। समझ रहे हो, ये उसकी खासियत है कि यहाँ हर समय अंधेरा कायम होता है। तो समझ रहे हो, तो यहाँ हर समय अंधेरा कायम होता है। नाउ वहां जो मछलियां होंगे तो आर दे ब्लाइंड, और वो देख सकते हैं? वो गाना आप सुने हो, सुने ना दूर आसमानों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखता रहूं, ऐसे वो गाना एक है, बड़ा स्वीट सा गाना येसुदास जी का। तो वो जो सुनैना है ना, सुनैना का मतलब क्या है बताइए? सुंदर आंखें, जिसकी आंखें ब्यूटीफुल आईज, जिसके ब्यूटीफुल आईज है। बट अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म में वो क्या होती है? ब्लाइंड। तो सिर्फ उसकी आंखें सुंदर है बट वो दिखता नहीं है उससे कुछ, इसीलिए वो गाना गा रही है। डू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब एबिसल जोन में जो मछलियां होंगे उनके आंखें तो है बट क्या उनको दिखता है? नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? because of darkness. नो माय डियर, बिकॉज नीचे लाइट ही नहीं है। अब तुमको भगवान ने डेला डेला दो दो आंख दिया है, तो अगर सडनली लाइट चला जाएगा आपको दिखेगा क्या? नहीं। नो सर। तो वो जिंदगी भर अंधेरे में है। तो धीरे धीरे उनका आंख क्या अडेप्ट कर लिया? टू लिव इन डार्कनेस। तो इसीलिए दोज फिशेस दे आर जनरली ब्लाइंड। बट सपोज आपको ब्लाइंड होना पसंद नहीं है तो आप कैसे क्या करेंगे? आपको उजाला लाना पड़ेगा। तो हाउ टू, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? बायोलुमिनेसेंस। समझ रहे हो? इसलिए दोज एनिमल which live in the dark but do not want to be blind, they create their own light. कोई शक? चलिए, so next टर्म जो है उसको हम कहते हैं बेंथोस। तो बेंथोस एनिमल कौन होते हैं? जो पानी के सबस्ट्रेटम में बैठे रहते हैं। तो okay, general term originally introduced to describe those animals found living in sedentary life on the क्या ओशन फ्लोर। तो ये लोग समुद्र तल पे पड़े रहते हैं। बट नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एसोसिएटेड विद द सबस्ट्रेटम, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो क्रॉल कर रहे हैं। ओके, तो वो आपके मिट्टी के साथ पड़े रहते हैं। नाउ अगर आप समुद्र, इफ यू गो टू ओशंस फॉर योर छुट्टीज, आप अगर स्कूबा डाइविंग करेंगे आप देखेंगे समुद्र नीचे क्या क्या पड़े रहते हैं बताइए? एकाइनोडर्म्स, स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सैंड डॉलर, हार्ट अर्चिन, सी कुकुम्बर, ओके, a lot of corals, a lot of anemone। ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एकाइनोडर्म्स। तो स्टारफिश, सी कुकुम्बर क्या है? दे आर एकाइनोडर्म्स। स्पॉन्जेस क्या है? दे आर पॉरीफेरन्स। कोरल्स क्या है? दे आर निडारियंस। कोरल्स एंड एनीमोनी भी हम लिख सकते हैं। तो आप बहुत सारा पाएंगे। मैं जब पीडीएफ नहीं दूंगा उसमें फोटोज लगा दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद आप अगर आपने मना कर दिया ना हमको पीडीएफ नहीं चाहिए करके तो लग जाएगा, तो आप जो है नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? सबटेरेनियन, मतलब जो समुद्र तल के नीचे रहते हैं। दे लिव अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, known okay, under the surface of earth या अंडर द सरफेस ऑफ सी बेड लिख देते हैं, अर्थ थोड़ा मिसलीडिंग है। सी बेड या ओशन फ्लोर। ठीक है, ये सी नहीं, ये वाटर बेड भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए जो एनिमल समुद्र के तल के मिट्टी उसके नीचे रहते हैं,
दे आर कॉल्ड क्या, दे आर कॉल्ड सबटेरानियन। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, एनालिड्स आ जाएंगे, आपका जो एम्फियोक्सस आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद टर्म क्या है, लिटोरल। तो लिटोरल मतलब एनिमल्स विच इनहैबिट इंटरटाइडल जोन। तो समझ रहे हो, जो आपका टाइड्स आता जाता रहता है। तो अभी अगर हम लोग, एक्चुअली यहाँ मैं ड्राइंग भी नहीं कर पा रहा हूँ ना, चलिए, तो सपोज हम लोग एक जगह देखें, ये जो मैंने कौन है, हमारा जो संकल्प है, एक दिन ना वो पुरी में जाकर सो रहा था समुद्र तल में। तो रात को ही वह स्लीपिंग एट ए प्लेस। तो एक बूढ़ा आदमी उधर आया जो उसको मैनेज करता है, आके बोलता है भाई ना तुम्हें राति सारा सोयार प्लान अच्छी ना पड़े वो। तो संकल्प बोला रात भर सोने का। बोला ठीक है आप इधर मत सो, वो ऊपर जाके सो। तो संकल्प बोला गधे बुढ़े, तेरा बाप का जगह है, मैं जो मर्जी करूं है, गेट आउट। फिर अगले दिन संकल्प मिला नहीं, क्लास भी नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम क्या हो गया, क्लास भी नहीं आ रहा आजकल। मंजिष्ठा, व्हाई संकल्प इज एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज? Sir, because of he was sleeping in the tidal zone, that's why he went to the tide. तो उसको रात में कौन उठा लिया, टाइड। समझ रहे हो? तो वो बुड्ढा क्यों इसको बोल रहा था उधर जाके सो, क्योंकि वो इंटर टाइडल जोन में था। तो रात को जैसे पानी उठेगा तो पानी ऊपर तक चला जाएगा, एंड संकल्प में सो रहा है तो वो पानी में बह जाएगा। कोई शक? चलिए, सो दे लिव बिटवीन द लो एंड हाई टाइड मार्क्स। इसलिए अगर आप कोई भी सी बीच जाएंगे आप देखेंगे कि वहां आपका लो एंड हाई टाइड मार्क्स रहता है। अंडरस्टूड? तो दोज मार्क्स एग्जिस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप रात भर सोने का प्लान कर रहे हैं, हाई टाइड मार्क के ऊपर सोइए, अदरवाइज डूब जाएंगे। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे एनिमल आ जाएंगे। ओके, आपका क्रैब्स, इफ यू हैव सीन, अगर आप गए हो पूरी उरी, तो जैसे लहर आता है तो आपके जो क्रैब्स है वो क्या करेंगे, बोलिए? What will happen to the crabs when that लहर comes? बह जाएंगे। नहीं नहीं, तो तुम लोग देखते कुछ नहीं हो ना। Sir, they will dog pits in the sand and will enter. They will, yes, they will enter into the sand. And फिर जब वो लहर चला जाएगा वो फिर बाहर आके खेलने लगेंगे। ओके, why? Because they are littoral animals. उनको ये खेल तो जिंदगी खेलते हैं। तो पानी आया तो सैंड में दफन हो जाते हैं, पानी चला जाएगा तो वापस ऊपर आ जाते हैं। ओके, चलिए, तो उसके बाद जो टर्म है दैट इज कॉल्ड नेरिटिक। तो नेरिटिक का मतलब क्या है? सो दे एनिमल लिव इन द कोस्टल वाटर वेयर डेप्थ इज 200 meters, ओके, अप टू 200 meters। फाइन। तो इससे होता क्या है, तो इट्स इज बनने इसका मतलब है वो यहाँ सनलाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, so the neritic zone is about 650 feet to 200 meter deep. Its proximity to the sunlight, okay, its proximity to the sunlight makes it क्या, highly productive location for planktons. ओके, तो प्लैंकटन्स क्या करेंगे, यहाँ भर के होंगे एंड वो खाना बनाएंगे। सो दैट इज वाई यहाँ आपके क्या होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे। वाई? भाई जहाँ खाना ज्यादा वहाँ एनिमल ज्यादा। कोई शक? नो सर। तो आया? सो दा माने कौन, नेरिटिक जोन वो जोन है जहाँ आपका लाइट बहुत ज्यादा मिलता है। बिकॉज एज यू गो इन द ओशन बियॉन्ड 10-200 मीटर आपका लाइट नहीं पेनिट्रेट करता। तो बियॉन्ड 200 मीटर विल यू फाइंड प्लांट्स?
No, sir. No. No, sir. You may find algae, but you will not find plants because plants को sunlight चाहिए and that too of higher intensity. ठीक है जी? तो you may find algae, उसके बारे में सर डिस्कस करेंगे आपके now. तो इसीलिए बट जब हम लोग देखते हैं जो सी वाला प्रोग्राम सब डिस्कवरी में देता है, कितना सुंदर सुंदर पेड़ है समुद्र तल में, तो व्हाट आर दे एक्चुअली? Plankton. इडियट. प्लैंकटन ऊपर होगा ना नीचे होगा? नीचे. वाह 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 वाह, वेरी गुड. डुबाने का प्लान है तुमको मेरे को. सो देयर आर नो प्लैंकटन्स इन द नीचे. अगर वो आपको पॉन्ड्स में मिलता है माय डियर, पॉन्ड जो आपको जो हमारा फ्रेश वाटर पॉन्ड होता है ना, तो वहां आपको नीचे प्लैंकटन मिलेगा. क्यों बोलो? लाइट वहां तक जाता है. क्यों? डेप्थ कम है. डेप्थ कम है. जैसे मेरे फार्म हाउस, आई हैव अ फार्म हाउस, तो उसमें मेरा पर्सनल पॉन्ड है, तो उसका डेप्थ कितना है? 10 फीट, 6 से 10 फीट. क्योंकि उससे ज्यादा फीट डीप करोगे ना तो मछली लोग, माने जो रोहू भाकुर लोग मर जाते हैं. तो इसलिए मेरा जो पॉन्ड है उसका डेप्थ 10 फीट पे है ज्यादा से ज्यादा. ओके. बट तो आपका जो बड़ा बड़ा लेक्स है या वाटर बॉडी है, उसमें वाटर डेप्थ मैक्सिमम आपका 50-60 फीट होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है. बट हम 200 मीटर डीप बात कर रहे हैं, तो मतलब लाइट 200 मीटर तक जाता है, तो उसके नीचे नहीं जाएगा. तो इसलिए लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे आपका डीप सी एक्सकवेशन देख रहे हो, उसमें नीचे बहुत सारे पेड़ मिलते हैं. So they are not plants, they are all nidaria animals. Okay? तो जब मैं आपको निडारिया पढ़ाऊंगा तो ये सब दिखाऊंगा. ओके? चलिए, तो do you understand my dear? So there are no planktons below 200 meters. Okay? Yes, sir. No light, no planktons. चलिए, एक और है oceanic. तो what are oceanic animals? They inhabit the remaining part of the sea, मतलब below 200 meters. तो जो लोग below 200 meters आते हैं उसमें oceanic कहते हैं. तो abyssal जो है वो क्या होगा? It is a subtype of oceanic animals. Understood? Now, so depending upon the depth of the ocean, oceanic fauna can be divided into epipelagic, mesopelagic, bathypelagic and abyssopelagic. ठीक है? मतलब सबसे ऊपर जो है, जो मैं दिखा रहा था मंजिष्ठा को, वो कौन सा पेलाजिक है? एपिपेलाजिक. उससे जो नीचे हैं, जो जहां तक हम नहीं देख पाएंगे, वो मीजोपेलाजिक. उससे जो नीचे होगा वो बैथीपेलाजिक, एंड जो सबसे नीचे होगा वो एबिसोपेलाजिक. एबिसो का मतलब समझ में आया कि नहीं? Yes. अंधेरा. चलिए, नाउ लिटोरल तो हम कर चुके हैं. नाउ लिम्नेटिक. तो ये आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का वाटर है. तो लिम्नेटिक का मतलब क्या है? लिम्नेटिक मतलब दे इनहैबिट ओपन वाटर्स. ओके, दे ओपन वाटर्स इन द what lakes and ponds. Okay, in the lakes and ponds, fresh water. ठीक है? तो ये आपके फ्रेश वाटर. तो लिम्नेटिक जो है जनरली हम लोग फ्रेश वाटर या जो ऊपर ऊपर लाइटेड एरिया उसको बोलते हैं. हियर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोव्स इन ओपन वाटर्स इन द सी भी लिख दो, क्या दिक्कत है? सी, लेक्स, पॉन्ड्स, हर सब. तो हियर phytoplanktons grow in abundance. Why grow in abundance? Due to what? Due to availability of क्या? Sunlight. Right? Sunlight. तो बहुत sunlight है. In this zone, light may penetrate up to 20 to 40 meter depth. Okay?
तो अप टू 20 to 40 मीटर तक जाएगा, तो इसीलिए आपका वहां खाना ज्यादा मिलेगा। सुनिए, इज इट ए रूल दैट लाइट विल गो टू 200 meters deep? नो सर। Why? Depends वो upon डिपेंड how करेगा much ऑन द वाटर। plants you have. Okay? अगर बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन आपका सरफेस में ग्रो करेगा तो क्या होगा? तो वाटर विल बिकम ओपेक, तो वो लाइट को नीचे जाने नहीं देगा। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ओपन ओशंस में क्या होता है, जनरली आपका जो टर्बुलेंट ओशंस होता है, जहाँ ज्यादा आपका घनघोर पानी होता है, तो वहाँ ये एल्गी फैल्गी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहेगा ना, उसको भगा देंगे। इट इज सो टर्बुलेंट, so दैट इज वाई वहाँ आपका पानी 200 मीटर डीप तक लाइट जाएगा। कोई शक? उसके बाद है प्रोफुंडल जोन। तो प्रोफुंडल जोन कौन सा है? सो दीज प्रोफुंडल एनिमल्स एक्चुअली आप हम लोग कह सकते हैं, सो दीज आर द एनिमल्स दैट लिव इन डीप वाटर जोन्स। ओके, सो इट इज डार्क एफोटिक जोन, मतलब यहाँ कोई लाइट नहीं है, तो इसीलिए आपका जो एबिसल जो है वो भी प्रोफुंडल्स में आ जाएगा। ओके, उसके बाद लेंटिक एंड लोटिक, तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। तो फ्रेश वाटर सोर्सेस विच आर फ्री फ्लोइंग, फ्लो लो, फ्लो लो, फ्लो लोटिक। तो याद रखना आसान हो गया। तो जो फ्री फ्लोइंग रिवर बॉडी है उसको लोटिक इकोसिस्टम बोलेंगे, एंड जो एनिमल्स वहां रहेंगे वो लोटिक एनिमल्स। स्टैंडिंग वाटर बॉडी जो है वो आपका लेंटिक वाटर बॉडीज होता है। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैंने इन दोनों में फर्क क्या आएगा? फ्लोइंग वाटर बॉडीज में कांस्टेंट रेजिस्टेंस देना पड़ेगा एनिमल्स को टू बी एट वन प्लेस। नो, डोंट टॉक द नॉनसेंस थिंग्स। भाई बी ए बायोलॉजी स्टूडेंट हो, फिजिक्स टर्म मत बोला करो। सर लेंटिक में आई मीन फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे। छी, थोड़ा भेजा फटाओ इडियट्स। हाँ सर बोलिए। लेंटिक में वाटर स्टैग्नेंट होगा, मूव नहीं करेगा। तो आपको क्या दिक्कत है? तो स्टैग्नेंट होने से प्रॉब्लम क्या है? लाइट यूनिफॉर्म सैलिनिटी। सोचो, लेट मी सी हाउ मच यू कैन थिंक। बताइए। अरे भैया उन एनिमल्स के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं सोचो। सर प्लैंक्टन्स नहीं रहेंगे लेंटिक वाटर बॉडीज में। लेंटिक वाटर बॉडीज का प्रॉब्लम आप लोग ये सब जानते नहीं हो ना, तो बकवास मत क्या करो, आप सोच के बताओ। तो लेंटिक का प्लस पॉइंट क्या है? बोलो। एक्चुअली एक जगह मैंने देखा, दीपावली आप लोग के क्लास में है क्या ना? वो प्राइम 40 वाली है। हेलो, क्लास में दीपावली। आपका क्लास कितने बजे तक है? खत्म हो गया शायद ना? 12-10 तक। हाँ चलो, तो बता दिया करो, मुझे पता नहीं चलता है। ओके, क्योंकि मैं तो दिन भर पढ़ा सकता हूँ, फिर वो बच्चे दुखी हो जाएंगे। फाइन, चलिए, सो लेट अस एंड द मीटिंग। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर इसका आंसर बता दीजिए। Thank you, sir. Yes, sir, इसका आंसर